بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں گزشتہ روز 26 ترمیم کر دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں جس انداز سے یہ بل پاس کیا گیا ہے وہ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ جو لوگ حکمران کہہ رہے تھے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں، تو نمبر کیسے پورے ہوئے؟ پی ٹی اے کے لوگوں کو اٹھا کر، پی ٹی اے کے لوگوں کو ڈرا کر، پی ٹی اے کے لوگوں کو دھمکا کر، پی ٹی اے کے لوگوں کی خواتین کو ہراساں کر کے، پی ٹی اے کی خواتین اور بچوں کو پکڑ کر اغوا کر کے، یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ یہ کیا بل پاس کرنا اتنا ضروری تھا کہ آپ نے لوگوں کو مارا، پیٹا، ان کو تشدد کیا، ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ کو، اور پھر بعد میں جب آپ 10 دن سے لوگ غائب تھے اور چھاتا برداروں کی طرح آپ نے اتارے اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیے۔ تو علماء یہ تو کوئی ترمیم تو نہ، یہ تو بہت بڑا ایک جدل تھا، جنگ و جدل تھا۔ اور یہ جس طرح غزہ میں اور اسرائیل میں آپس میں جنگ ہو رہی ہے، یہ بڑھ کر اس سے یہ جنگ لڑے گی کل قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، کیونکہ اتنا ہائی الرٹ تھا جتنا کہ اگر شنگھائی کانفرنس ہو تو اس وقت بھی اتنا ہائی الرٹ نہیں تھا۔ اتنے بھی وہاں پہ جو انتظامات کیے گئے تھے نا، وہ اتنے سخت اور اتنے گھناؤنے تھے کہ لوگوں کو خوف آ رہا تھا کہ یہ کس جگہ ہم جا رہے ہیں۔ تو اب جو انہوں نے کرنا تھا اپنی منمانی کر لی۔ اب ججوں کی اپوائنٹمنٹ یہ کریں گے، چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ یہ کریں گے، آگے کیسوں کا فیصلہ یہ کریں گے کہ کون سا کیس ہے جو کہ عدلیہ میں جائے گا اور کون سا ہے جو وہ اسپیشل بینچ بنایا اس میں جائے گا۔ تو یہ سارے اختیارات انہوں نے اپنے اندر اکٹھے کر لیے اس میں۔ تو آج ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے لندن میں مقیم ہمارے دوست ہیں جناب مقیم احمد خان صاحب۔ مقیم احمد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، دوسری ہماری مہمان ہے محترمہ زیبا ناز صاحبہ، یہ پاکستان تحریک انصاف لاہور کی میڈیا کوآرڈینیٹر ہے۔ میں محترمہ آپ کو بھی اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ احسان صاحب۔ تو مقیم احمد خان صاحب، کل آپ نے یہ 26ویں ترمیم ہوتی دیکھی ہے اور اس میں جو طریقہ کار حکمرانوں نے اپنایا ہے اس پر بھی بات کریں، اور میاں نواز شریف نے جو وہاں پہ شعر پڑھا اور جتنی تفضیل کی گئی عدلیہ کی اس سارے کل کے اجلاسوں میں اور اس تحریک میں، جب سامنے سے جواب دینے والا کوئی نہ ہو، یہ گفتگو کیا زیب دیتی ہے؟ جی بڑی دلچسپ حال ہے۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی پاکستان کے سو کالڈ متفقہ منظور شدہ 1973 کے آئین میں۔ حیران ہوں کہ یہ کس انداز میں منظور ہوئی، اور تجزیہ کروں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ جی 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 ماشاءاللہ۔ لیکن اس غزل کا حاصل یہی ہے کہ یہ جو میلہ رچایا گیا تھا یہ جسٹس منظور علی شاہ کا کمبل لینے کے لیے رچایا گیا تھا۔ اچھا، مطلب سارے سمجھ میں یہی آتی ہے بات کہ صرف افسوسناک بات ہے کہ کسی پروفیشنل جج کو، کسی آدمی جس کی ساری عمر عدلیہ کے ایوان میں گزری ہو، اس کو لیبل کر دیا جائے، بریکٹ کر دیا جائے، یا کسی مخصوص جماعت کے ساتھ یا ادارے کے ساتھ منسلک کر دیا جائے، یا اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اب اس میں ہمارے ناعاقبت اندیش سیاستدانوں کا بھی اس میں رول ہے، پرست ان شخصیات کا بھی رول ہے، اور کچھ لوگوں کی کوتاہیاں بھی ہیں کہ ایک اچھے بھلے چلتے ہوئے ادارے کو اور اس میں بیٹھے ہوئے برگزیدہ لوگوں کو اس طریقے سے ان چیزوں کے ساتھ منسلک کر دیا گیا جو قطعی طور پر غیر ضروری تھیں، جن کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا اور جس کی ضرورت بھی کوئی نہیں تھی۔ جی اب کہہ دینا، یہ تصور ہی کر لینا کہ کوئی جج آئے گا تو وہ ہماری حکومت بنا دے گا، یہ جج رہ گیا تو یہ
सालमियती जमानत होगा, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। ये इस किस्म का तमाशा हमने यहीं देखा है। मुकरम साहब, मैंने जो देखा है ना कि वो 17 जजेस की बात इस तरह कर रहे थे जैसे 17 पपट नहीं होते। वो ये कहते थे कि ये 17 जजों का फैसला होता है, कोई जिसको मर्जी उठाकर बाहर फेंक देते हैं, वो वजीर आज़म हो, वो कोई हो। तो अब उन्होंने ये अपने तरफ ये कर लिए सारे मामला कि अब हमने किसी को फेंकना है तो फेंकना है, हमें नहीं को फेंक सकता। इंग्लिश में कहते हैं मैन प्रोपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। या फिर फारसी में कहते हैं कि तदबीर कुनिंदा बंदा, और आगे फिर उस तो बाद वो रब का फिर आज फारसी का जिक्र करके ना आपने एक मकूला याद करा दिया है। हाँ। पढ़ो अंग्रेजी ते अच्छी नौकरी करो तो पढ़ो फारसी तो बेचो तेल। अब ये जो फारसी की आपने बात की, कौन समझेगा इसको? नहीं समझते हैं, सबको पता है। अच्छा। ये रब की लाठी बे आवाज है, जिन्होंने सोच लिया कि हम सारी उम्र ताकत का महवर रहेंगे, जिन्होंने कभी ये सोच लिया कि इक़्तिदार हमारे घर की लौंडी है। अगर किसी ने ये सोच लिया कि जब तक मेरी सांस चल रही है मैं हुक्मरान रहूंगा, तो ऐसा है नहीं। शद्दाद, नमरूद, फिरौन, फिर हमारे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स, इसी गम में वो दुनिया से चले गए कि हम, ये होती है ताकत। परवेज मुशर्रफ ऐसे दिखाता था लोगों को मुठियां बना बना के जलसे में कि ये होता है ताकत का असर। हाँ जी, बंदे जिंदा जलवा के और मरवा के वो बंदा मुस्कुराता था स्टेज पे खड़े होके। फिर आपने भी देखा उसके साथ क्या हुआ। सही बात है। मरना याद नहीं रहता, या इक़्तिदार की गलियों में जाके ये बावले हो जाते हैं, ये अंधे बहरे और डोरे क्या नहीं हो जाता, ये क्या हो जाता है मुझे समझ नहीं आती। सही बात। सामने खड़ी हुई भैंस इन्हें नजर नहीं आ रही होती। अब ये जो नई जिद्दत आपने पार्लिमानी निजाम में की है, ये जिस तरीके से भी पास हुआ है, अब कल को हुक्मरान रहने वाली जमातें ये बर्दाश्त कर लेंगी? कल यही सुलूक, इससे बदतर सुलूक होने जा रहा है इनके साथ। ये कब्र जो खोदता है उसमें गिरता जरूर है, हमने देखा है। भुट्टो साहब ने कानून पास कर दिया था कि बाहर से आया हुआ कोई वकील जो उनका केस नहीं लड़ सकता। सही बात। रमजे क्लार्क, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए, भुट्टो साहब का मोहम्मद अहमद खान के कत्ल केस में मुकदमा लड़ने आया, आगे वही कानून उनके सामने दीवारें चीन बन के खड़ा हो गया। उनका जनाब आपने तो ये कानून बनाया था, रमजे क्लार्क वापस। सही। और इसी तरह ये अपने मर्जी के बंदे चुन के लाने वाले भी, भुट्टो साहब वाला केस आपके सामने 7 आदमी सुपरसीड करके वो लाए थे। प्यारा सा मासूम था, मुस्कुराता हुआ जनरल। ये भी तो इसी को दोहराया जा रहा है ना, वही भुट्टो केस वाला मामला। इस वक्त वो जो इमरान खान जो जेल में पड़ा है ना, उसको भी इन्होंने फांसी लगाने के लिए सारा मामला किया है। अब देखते हैं जी, आपके सामने फिर दूसरी मिसाल है, जनरल परवेज मुशर्रफ को उन्होंने बड़ा एक जी बाकमाल प्रोफेशनल सोल्जर है, पीछे से इसका कोई घराना सियासी नहीं है, ऊपर से ये उर्दू स्पीकिंग महाजर है, तो इससे ज्यादा बेजरर तो बंदा हो ही नहीं सकता। उन्होंने ये नहीं पता सी कि ए तो फिर फांसी दे फटे दे कर जाके। सही। इस किस्म की रिवायतें कायम करके अजीब गरीब किस्म की हरकत की जाती है, और समझता कोई नहीं है कि जी ये इतना आसान है, बंदे उठा लेना, बच्चों को अगवा कर लेना, खवातीन से गन पॉइंट पे आप वोट ले लेंगे। यार लखदी लानत है, हो जे निजाम दे होते तो कम दे होते। अच्छा वकील साहब, मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह बड़ी आपकी अहमियत है, आपके बड़े तजी हैं, आपके बड़े बड़े ऐसे मामलात हैं जिन पे हम फख्र करते हैं। अब ये जो इतनी इन्होंने कर ली तरद्दद से, इससे क्या पाकिस्तान में कोई नहर की और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी? ये सिर्फ 3 आदमी, मैं टेलीविजन स्टेशन के लिए आप ही को बड़ा मसला नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन ये मसला 3-4 शख्सियात के दरमियान है। अच्छा। हाँ, ये कौमी मसला कोई नहीं था। दो मसले हल हो चुके हैं। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, मसले 2 चीफ थे। एक चीफ जस्टिस था, वो मसला सेट कर लिया अपनी तरफ से इन्होंने। ठीक है। एक कमिश्नर था, उसका मसला भी इनडायरेक्टली सेटल हो गया है कि जब तक उसकी जगह पे कोई दूसरा बंदा नहीं आता
یہ آپ کے سر پہ سواری کرتا رہے گا راجہ سکندر سلطان. ٹھیک, یہاں تک مسئلہ حل ہو گیا. اب تیسرا جو ہے وہ انشاءاللہ یہ ایکسٹینشن کے ذریعے حل کر لیں گے تو اللہ خیر صلی اللہ, یہ ابھی تک ان کا پلان ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور رب کریم کا فیصلہ کیا آتا ہے. اچھا مکیم صاحب, میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. ہم یہ طریق انصاف سے یہ پوچھتے ہیں, کل کا جو سارا وہاں پہ کھیل کھیلا گیا اور وہ سارا کچھ اسی لیے کیا گیا کہ پاکستان طریق انصاف کو اور دائرے میں کیا جائے اور ان کے خلاف دائرہ لگا کے ان کو سمجھایا جائے کہ آپ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ہم آپ کے ممبران اٹھا لیں, ہم آپ کے سینیٹر اٹھا لیں اور ان کو چھاتا برداروں کی طرح قومی اسمبلی اور سینٹ میں لا کے ان کو ووٹ ڈلوا رہے ہیں, آپ کچھ ہی نہیں کر سکتے. تو محترم آپ یہ بتائیں, یہ سارے آپ کو سینٹر کھینچ کے لے گئے, ایم این اے کھینچ کے لے گئے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, تو پھر آپ یہ روتے کیوں ہیں, کیوں جلسے جلوس نکالتے ہیں, خاموش ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان صاحب شکریہ آپ کا. یہ تو وہ جانتے ہیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے, جس حکمران جس ترمیم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے انہوں نے بڑے پاکستان طریق انصاف کو نیچے لگانا اور ان کو ہر حد میں بین کرنے کی بھی کوشش کی, اس کو بالکل جڑ سے ختم کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن یہ ناکام ہی رہیں گے انشاءاللہ, یہ کامیاب کبھی نہیں ہوں گے. انہوں نے ہمارے سینیٹر اغوا کیے 10 دن تک, یہ کبھی چین کی نیند نہیں سو سکتے. آپ کسی کے اوپر زیادتی کر کے, کسی کا دل دکھا کے, کسی کے بچوں کو ہراساں کر کے ووٹ لینے کے لیے, آپ یہ کہتے ہیں وہ چین کی نیند نہیں سو سکتے, بالکل نہیں سو سکتے, بالکل نہیں. ہم تو دیکھیں نا آگے آگے کرتے کیا ہے. ہم نے دیکھیں گزشتہ روز جو قومی اسمبلی میں سینٹ میں اجلاس ہوا, وہ جو بتا رہے تھے کہ جتنی بھی نگرانی میں یہ اجلاس ہوئے ہیں, اتنی نگرانی میں تو یہ شہنائی کانفرنس جو ہوئی ہے جس طریقے سے انہوں نے کی ہے, میں حیران ہوں کہ پوری دنیا میں انہوں نے, اور اسلام آباد خاص کر کنٹینر کا شہر بن چکا ہے, انہوں نے پورے اسلام آباد کو بند کر دیا ہوا ہے کہ کوئی آر پار نہ ہو سکے, کوئی اندر نہ جا سکے, کوئی باہر نہ, اور وہ لوگ آسمانی چھتیاں لے کے نیچے اترے جو ہمیں ووٹ دے. جب یہ گردان ناپتے تھے کہ بھئی ہمارے نمبر پورے ہیں, تو صحافی لوگ ان سے پوچھتے تھے جب یہ باہر نکلتے ہیں کہ آپ کے نمبر پورے ہیں تو آپ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے تھے صرف ہم کنسنسس کے لیے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اگر وہی ہوا جو ہونا تھا. کئی دنوں سے تذکرہ ہو رہا تھا کہ سینٹروں کو انہوں نے ڈرایا دمکایا, اپنے پاس رکھا. اور کل وہ مکیم خان صاحب سے ان کی مہرانہ رہ لیتا ہوں, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے, اور لندن میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں, کیونکہ لندن اقوام عالم کا گڑھ ہے. مولانا کو اس میں 2-3 قسم کی کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں. ایک کہ وہ جس لائم لائٹ میں آ گئے اور جس طرح ان کو مرکزیت ملی, جس طرح ان کا استقبال ہوا اور جس طرح ان کے گھر کے لگائے گئے کہ لوگوں نے جوتیاں گھسا دی ان کو راضی کرنے کے لیے, اور ان کا پرچی صفا دے گا کہ اتنے مہمان آ رہے ہیں. جی, اب اس میں ایک کامیابی ضرور ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ملٹری کورٹس والا کنڈا نکل گیا, وہ اس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ آئینی عدالت نہیں بنی, صرف آئینی بینچ کی بات ہو رہی ہے. یعنی ان کی وجہ سے یہ 2 کام نہیں ہوئے. ہاں جی, یہ ان کا سٹانس تھا. اچھا. تو یہ پازیٹیو چیز جو ہے, یہ جس کا کریڈٹ پی ٹی آئی بھی ان کو دے رہی ہے, یہ 2 چیزیں تو ڈیفینیٹلی ان کے کریڈٹ پر ہیں. پھر یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیا. وہ ہمیشہ ایک کنگ میکر کا رول ادا کرتے رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے پرویز مشرف کے ٹائم سے لے کے اور اب تک, تو وہ مطلب انہوں نے اقتدار کو بڑے اچھے طریقے سے انجوائے کیا ہے. یہ اس دفعہ ان دونوں مقیم صاحب کل
मेरे ये मुख्तलिफ अखबारात में कॉलम छपे और उसका अनुमान था कि 26वीं तरमीम के तमाम रास्ते मियाँ अपना मौलाना फजल रहमान की तरफ। उसमें मैंने लिखा था कि अब इनकी जो डीजल की टैंकी है ना उसको भरने का वक्त आ गया है, ये टैंकी भर जाएगी तो ये हुकूमत का साथ देंगे। क्या ये ऐसा नहीं हुआ? इल्जाम लगते रहते हैं और सियासतदानों पर तो इल्जाम लगाना सबसे आसान होता है। इन्होंने वो डीजल का और मौलाना डीजल का नारा याद किया था, उनका बस नहीं चल रहा था कि मौलाना की मुर्गियों की भी दुनिया ले लें। जी जी। और वो जो क्या नाम है, जो नारे लगवाते थे जलसों में, वो उनकी सियासी बसीरत की दाद दे रहे थे। ठीक, तो ये ठीक, अच्छा है। इसको अब ये टैंकी भरी या नहीं भरी, तो अगर ये टैंकी भरे बगैर हुकूमत का काम हो जाता तो कर लेते। लेकिन तो टैंकी भरनी पड़ी ना। देखिए, सियासत जो है वो गिव एंड टेक का खेल है हमारे यहाँ। अच्छा मुकद्दर साहब, ये वकार असलम साहब तजिया नगारा ये हमारे साथ मौजूद हैं। वकार असलम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अच्छा वकार साहब, ये कल जो तरमीम पास हुई है इस पे लोगों के मिले जुले तसरात हैं, क्या इससे कौम मुल्क को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, या कि मुल्क में जो तमाम तर मामलात ख़राब थे इन तरमीम के आ जाने की वजह से वो सही हो जाएंगे? जी एहसान साहब, मैं समझता हूँ कि ये एक मुल्क की सलामती और बका के लिए बड़ा ज़रूरी था, एक स्टेबिलिटी के लिए बड़ा ज़रूरी था कि एक ऐसी तरमीम लाई गई है कि जिससे मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक फर्द वाहिद से की कोर्ट से बॉल निकाली गई है और ये अब मतलब मुल्क के वसीतर मफाद में किया गया है कि मतलब आप 30 सेकंड की एक वज़ीर आज़म को सजा दी गई थी, आपको याद होगा 2011 में यूसुफ रजा गिलानी को सजा मिली थी और वो 30 सेकंड की कन्विक्शन के बाद जो है वज़ीर आज़म नहीं रहे थे और राजा परवेज अशरफ ये वही बात कर रहे हैं जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के निकले थे और गुजरांवाला तक गए थे कि इनको उन्होंने धरना भी दिया था। वही बात है। और यानी का उनको प्रेशर भी आया था और प्रेशर वो झेल नहीं सके थे। ये बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है, लेकिन ये तरमीम बेसिकली करवाई गई है, ये किसी सियासी रहनुमा के करने का काम नहीं था और ना उनमें इतनी जरूरत और मतलब मैं वक़्त समझता हूँ उनकी। आपने देखा कि कितना तमाशा चलता रहा इस पूरे एक माह में कि मतलब हर कोई जाते रहे रहनुमा मौलाना फजल रहमान से मिलने, कोई कहते रहे कि हमारी नंबर गेम पूरी है, कोई कहते रहे कि नहीं सेनेट में काम है। तो बिलाखिर मतलब बड़ों को ही इन्हें यकजा करके देने पड़े लोग और फिर जाके ये रात को लेट नाइट इनसे ये पास कर सके। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी नाकामी है सियासी रहनुमाओं की कि मतलब एक पहले तो यकमुश्त 53 कवानीन पास कर लिए थे इन्होंने पीडीएम गवर्नमेंट पार्ट 1 में, लेकिन अभी ये करने में हाथ से नाकाम नजर आए हैं। मतलब इस तरह की मतलब एक वीकनेस को जाहिर करती है चीज के मतलब आपके पार्लिमानी निजाम इतना वीक है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो एक मतलब आईनी तरमीम जो उसका काम ही लेजिस्लेशन है वो करने से कासी नजर आई और बिलाखिर कुछ कुव्वतों को इंटरवीन करके ये करवानी पड़ी। वकार साहब यहाँ स्टूडियो में मौजूद है मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर की मीडिया कोऑर्डिनेटर है। अब हम इनसे ये पूछते हैं, ये जो कल सारा वहाँ पे खेल खेला गया है और उसमें अभी जैसे उन्होंने बताया ये बहुत अच्छा हो गया, अच्छी हो गई, तरमीम हो गई, तो इन तरमीम से क्या पाकिस्तान को नजर आता है कि आपको फायदा होगा या आपको बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है? एहसान साहब, एक घर में ना चोरी करने चला गया बंदा, वो नून लीकियों की तरह ना बड़ा जल्दबाज था। उसका था मैं ये घर लूट के ना तो फटाफट भाग के अगले घर में चोरी कर लूं, और ये मेरे पास 5-10 मिनट हैं क्योंकि बाहर जो लोग खड़े थे उसका वेट करने के लिए, वो उसको बार बार कह रहे थे कि जल्दी चोरी करके निकल बाहर। अब वो एक घर में गया तो दरवाजा नॉक किया तो किसी ने खोला ना, वो खिड़की से, हाँ जी, वो खिड़की की तरफ से अंदर को घुसा
और एक मर्द उठा, वो दरवाजे की तरफ गया और ये उसकी रजाई खींच के बाहर भाग गया। अच्छा। अब वो औरत थी, वो थी बहुत मोटी, वो चोर को देखा, वो चोर के ऊपर बैठ गई। अब वो उसके नीचे से हिले ना, अब वो चोर कहे कि भाई, ये कहे मैंने चोर पकड़ लिया, जल्दी आ जाओ, मैंने चोर पकड़ लिया, जल्दी आ जाओ। तो वो चोर आगे से नीचे से कहता है कि तू मुझसे ले ले जो लेना है, मेरे ऊपर से उठ जा, क्योंकि मैं, वो आएगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये मसला बना हुआ है हमारी नून लीग के लोगों का जी। तो बात ये है कि इन्होंने तरमीम तो हल करवा ली, इन्होंने अपने जज, वकला और अदलिया जो भी इन्होंने अपने हक में फैसले करने थे वो कर लिए, और जजों के लिए जो इन्होंने उनको पैसे भी दिए, सारे खरीद भी लिए, उसके बावजूद ये अपने घड़े में खुद ही गिर जाएंगे। और ये जो कानून पास करवाए हैं इन्होंने, ये उसी कानून के अंदर खुद ही गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा जो लूमड़ी होती है ना, सियानी, वो सारे रास्ते से शेर को सिखा देती है, वो दरख्त के ऊपर चढ़ना नहीं सिखाती। ये वो चलाको लूमड़ी है जिसने अपने आप को बड़ा महान समझा और वजीर आला पंजाब बन के पाकिस्तान को इस निज में ले आई। पूरे चाची भतीजी ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और दूध की नहरें बहानी शुरू कर दी आवाम को दिखाने के लिए कि हमारे आने से तरक्की याफ्ता काम शुरू हो जाएंगे। हम नवाज इमरान खान को अंदर रहने देंगे। जी जनाब मुकीम साहब हमसे ही मुल्तमस हैं कि मैडम ये कह रही हैं कि इन्होंने जो भी इस्लाह अपने तरमीम की है ना, ये वो गड़ा है जिसमें खुद ही गिर जाएंगे। आपकी क्या राय इसमें? देखिए, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि किसी का भी इक़्तिदार सदा नहीं रहता। ये कितना अरसा ये सिस्टम चल जाएगा, ये रिजीम कितने दिन जिंदा रहेगी, उसके बाद क्या होगा। कल को इनको जब इस पे इख्तलाफ में बैठना पड़ा, ये बर्दाश्त कर पाएंगे? 12-12 साल के बच्चों के अगवा, खवातीन को तशद्दुद-ज़दा अफराद की कॉल, 12-12 दिन से लापता अफराद खाना, या खाना से राब्ता ना होना, ये कौन, कितने लोगों का जिगरा है कि वो ये बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं मुकीम साहब, क्योंकि कल से पहले राणा सनाउल्लाह ने और ये तारण ने और ख्वाजा आसफ ने कहा था कि जिन लोगों को हमने अगवा किया हुआ है, जिन लोगों को हमने पकड़ा, उनका कोई नाम बताएं, सामने लेके आए। तो उस वक्त तक कल कोई बात सिर्फ यही होती रही, पकड़े हुए पकड़े। कल जब ये वोटिंग हुई है, उसके बाद जो कायदे बेख्तलाफ है ना, उमर यूब साहब, उन्होंने सबके नाम भी गिनाए और ये जुल्म और तशद्दुद भी गिनाया। तो क्या ये पहले अगर बता देते तो ये इसका कोई अच्छा हल ना हो जाता? चोर मचाए शोर, मुकीम साहब एक मिनट, चोर मचाए शोर हम इनको बताते कि हमारे लोग पकड़े हुए हैं तो वो हमें मिल नहीं रहे, क्योंकि उनको बताते तो उन्होंने तो पकड़े हुए थे, उन्होंने क्या हल निकालना था। उन्होंने तो ये जरूर किया कि तशद्दुद और ज्यादा कर दिया उनकी फैमिली के साथ और उनकी माओ बहनों और बेटियों के साथ, वो नजेबा हरकतें की और वो उनके घरों में जाके चदरों के बगैर बच्चियों को, माओ को और बुजुर्गों के साथ उन्होंने ज्यादतियां करके एक वोट हासिल करने के लिए इतना रुस्वा किया आवाम को इन्होंने कि आप सोच नहीं सकते उनके घरों का जो हालात हुए हैं 10 घरों में। कल कायदे उमर यूब साहब ने ये कहा है, बिल्कुल कहा उन्होंने, बातें सारी की हैं जो मैं आपसे मुल्तमस हूं जी, क्योंकि आपने किसको और बताना होता है। हुकूमत वो है, हुकूमत, हम तो हुकूमत नहीं मानते, वो तो हमारा मैंडेट चोरी करके आज बैठे हुए हैं, आज वो हमें कहते हैं हमारे साथ मिल जाए, कैसे मिल जाए भाई? अच्छा मुकीम साहब, आप अपनी बात को जारी रखें। लेकिन जिस तरीके से नंबर्स पूरे किए गए उसमें आपके सामने है ये 5 आजादारा की जो पीटीआई की हिमायत से असेंबली में पहुंचे थे, उसमें चौधरी इलियास थे, उस्मान अली थे, मुबारक ज़ेब थे, ज़हूर कुरैशी थे, औरंगज़ेब खिची थे। फिर सबसे ज्यादा जुल्म जो हुआ वो बलूचिस्तान से हमारे अख्तर मैंगल की जमात के साथ हुआ। पहले तो उन्होंने इस सिस्टम की नाकामी के ऊपर 2 हरफ भेजते हुए असेंबली में इस्तीफा दे दिया था, वो बाहर चले गए। इस दौरान उनके सेनेटर्स के साथ जो कुछ हुआ, कासिम रोंजो है, उनको
व्हील चेयर पे लाया गया। नसीमा एहसान वो बेचारी कोई सवाल का जवाब देने के काबिल नहीं थी। ज़रका साहिबा है, साहबजादे को अगवा किया गया था। अब वो माँ है यार, वो कैसे बेचारी किस तरीके से इस सदमे को बर्दाश्त करेगी और वो किस तरह दुनिया को फेस करेगी। फिर कल सेनेट की मेहमानों की गैलरी से अख्तर मेंगल जैसे मोअज़्ज़िज़ सियासतदान को बाहर निकाल दिया गया, इसलिए कि ताकि उनका सामना इन अराकीन सेनेट के साथ ना हो जिन्होंने उनकी पार्टी से गद्दारी की है। नहीं मुकीम साहब, मुझे आप ये बताया ना, एक तरफ से ये जुल्म तशद्दुद हो गया, तो जो उन्होंने पैसे लिए हैं और करोड़ों रुपए लिए हैं, ये चीज को मैटर नहीं करती? पता नहीं जी, अब ये तो कोई प्रूफ सामने हो तो बात करें। ये इल्जाम लगाना, आजकल तो लोग मुंह खोल के ऐसे बात कर देते हैं कि जैसे को पता नहीं नस्वार की पुड़िया पकड़ा दी हो। कोई कह रहा जी 3 अरब रुपया, तो कोई कह रहा जी 1.25 अरब रुपया। अब ऐसा तो नहीं है कि हवा के झोंकों के साथ मतलब वो अरब रुपया इधर उधर हो रहे हैं। अब ये किसी के पास प्रूफ है तो भाईजान फिर वो कोई कार्रवाई करे उनके खिलाफ, और अगर नहीं है तो फिर सब्र शुक्र करें और इसी तनख्वाह पे गुजारा करें। अच्छा वकार साहब, ये हमारे साथ लंदन से जनाब मुकीम वक़ार साहब गुफ्तगू कर रहे थे, वो भी आपने सुनी, ज़ेबा नाज की भी सुनी। तो मुझे ये बताएं कि कल की जो रवायात पड़ी हैं कौमी असम्बली में, सेनेट में, और जो आवाज़ें आ रही हैं चीहो बकार की, आहो बका की, ख़वातीन की, बच्चों की रोने की आवाज़ें जो सब लोग सुन रहे हैं, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? क्या आईनी तरमीम ऐसे की जाती है? आईनी तरमीम ऐसे नहीं की जाती एहसान साहब, और आईनी तरमीम करने का एक तरीका कार होता है। आप अपनी मतलब कोई ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते कि हमारी नंबर गेंद पूरी है, हम करने जा रहे हैं, हम करने लगे हैं, हम सोच विचार कर रहे हैं, हम मौलाना के पास चले गए हैं। मतलब एक बड़ा ब्रेक थ्रू तो है, लेकिन इस ब्रेक थ्रू को इस तरह से पब्लिसाइज करना और इस तरह से मतलब शोर गुगा रखना कि मतलब पता नहीं क्या अनहोनी चीज करने जा रहे हैं, मतलब मुझे नहीं नजर आए। उसके मैंने निकात पढ़े हैं जो आईनी तरमीम का, पहले तो मुसवदे जाली जारी किए जाते रहे और फिर कहा जाता रहा नहीं ये हमारा नहीं है, हमने ये तरमीम नहीं मतलब प्रपोज की, और बाद में जाकर आप इन चीजों से मुकरते रहे। तो आईनी तरमीम इस तरह तो नहीं की जाती, ये तो एक आईनी भौचाल मतलब आपने पैदा करने की कोशिश की है ना, हाइप इस तरह की क्रिएट की गई है कि जैसे पता नहीं क्या अनहोनी चीज कर रहे हैं या ऐसा कोई आइन के साथ डाका डाला जा रहा है। मुझे तो आइन के साथ डाका डलता नजर नहीं आया। और जहां तक बात है कि ये बड़ा जुल्म हो गया लोगों के साथ, तो फिर ये सियासत तो जी गुर्दे का काम होता है, इसमें तो आपको थोड़े मतलब गट्स दिखाने पड़ते हैं। और जो करोड़ों रुपए की ऑफर्स हैं, ये खान साहब खुद कोट करते रहे, इमरान खान साहब। मैं ज़ेबा साहिबा से बसदे एहतराम पूछना चाहूंगा कि क्या खान साहब नहीं कहते रहे कि मतलब मेरे लोग, मेरी टीम जो थी वो बिक गई, मेरी टीम को करोड़ों रुपए ऑफर किए गए। तो अगर आप करोड़ों निकल गए थे, वो बिके नहीं है, हमने निकाल दिया। जब उन्होंने पार्टी चेंज कर दी तो हमने उनको रिजेक्ट कर दिया। अब हमारी पार्टी में वापिस नहीं आएंगे, पैसे नहीं दिए उन लोगों को, पैसों से नहीं बिके, वो पार्टी छोड़ गए हैं। तो वो वफादारी तब्दील करने के खान साहब कहते रहे कि मतलब पैसों पे बिक गए लोग। तो सिंध हाउस में बोलियां लगती हैं, हमने नहीं देखी पीडीएम गवर्नमेंट पार्ट 1 में। जी वकार साहब आप ये बताएं, वकार साहब आप ये बताएं कि इस वक्त ये जो तरमीम हो चुकी है और इसमें इतना शोर गोल, इतना वावेला अपोजिशन ने बनाया, लेकिन उन्होंने अपनी तरमीम पास कर ली है, क्या इन तरमीम को लागू सही तरीके से किया जा सकता है? ये वकला बरादरी अलग खड़ी है, साफी बरादरी अलग खड़ी है, पूरी कौम अलग खड़ी है, तो इनकी तरमीम क्या चल जाएगी? मुझे लगता है कि चल जाएंगी, और ये अगर ना चलनी होती तो फिर मंजूर ही नहीं होनी थी। मतलब नंबर गेम या ऐसे कोई रोले गोले डल जाने थे। अभी आप देखें तो मैं ऐसा कोई मोमेंटम नहीं देख रहा कि वकला तहरीक आ रही हो या कोई मतलब सहाफी जो है वो बच से पैकार हो जाएं या एहतजाज पर उतरें। सहाफी तो उन्हें तो अपनी रोजी के लाले पड़े हैं, मतलब मीडिया हाउसेस के जिस तरह से शट डाउन हो रहा है और जो मामला चल रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि मतलब किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस सामने आएगी। इवन पीटीआई के आप बैरिस्टर गोहर को देखें तो वो बहुत पहले जो सारा प्रोग्राम किया गया सहाफियों के साथ, ये इसी का पेश ख्याल उन्होंने शबबंदी की, जैसे उसमें बुखारी ने कहा
अपने वज़ीर आला पंजाब ने कहा सहाफ़ियों के बारे में, फिर उनको नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा पहली दफा। उनके साथ तो सरासर ज्यादती हो रही है, वो एक अलग मामला है, मतलब वो पंजाब गवर्नमेंट की हद तक है, जबकि जो आईनी तरमीम है, सांसद आप एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप ये जानते हैं कि वो एक वफाकी मामला है और वो करवाने वाले उसको करवाने में जिसका आशीर्वाद है वो सब लोगों को संभालना चाहते हैं। आपने सही बात बताई, मुझे ये बताया ना कि एक वज़ीर आला पंजाब हो और उन्हीं की हुकूमत मरकज में भी हो और वो इस तरीके से पहले 2-4 दिन इन मामला को इस तरह से हैंडल करें, तो ये कंटिन्यूटी नहीं इसी सारे मामला की? ये कंटिन्यूटी इस तरह से है, लेकिन अगर वो मतलब पहले भी इस तरह करते रहे हैं कि वो सहाफियों को मतलब अपने तरफ करने के लिए, मतलब उनका काम ही ये रहा है, मीडिया मैनेजमेंट और वो ये सारी चीजें सेल चलाती रही हैं, पहले भी जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो अभी भी वो मेरे ख्याल से पीटीवी के कुछ नौकरियों की बंदरबांट करके कुछ सेटल कर लेंगे मामले को। जी ज़ैबरनाज़ साहब, आप ये बताएं कि ये जो सहाफियों के साथ किरदार है आईनी तरमीम के हवाले से, इससे पहले मोहतरमा जो उस्मा बुखारी साहब है, उन्होंने विभाग दौल कहा कि जो सहाफी शोर डालेगा, जो सहाफी ऐसी बात करेगा तो उनको नौकरी से फिर नौकरी से चले गए। तो ये क्या ये फसायत की हुकूमत इस तरह चल सकती है? एहसान साहब, ये बेवकूफ़ और अनपढ़ लोग हैं, इनको जज्बात में आके फौरी अल्फाज निकाल देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसी पाँव के ऊपर फिर हाथ जोड़ के माफियां भी मांगनी शुरू कर देते हैं। आप ये देखें, उनकी बेबसी का आलम देखें कि वो एक तरफ ये कहती हैं कि कोई साफी आवाज ना निकाले, छोटे बच्चों की केजी जमात होती है ना जब, तो टीचर उनकी हेड होती है, तो वो डंडा दिखा के कह रही होती है कि अगर आवाज निकली तो मैं पनिशमेंट दूंगी, अगर आपकी आवाज। और वो इतने सीजन जर्नलिस्ट थे, सारे टीवी एंकर थे, सारे वहां पे देख के मुझे तो बहुत ज्यादा नदामत हुई कि वो उनके सारे पसंदीदा थे जो बुलाए। बिल्कुल, वो तो जाहिर है उनको लेके वो मरी में भी स्टेज टू कराते रहे, उनके टीवियों को पैसे दिए, अभी मीडिया को बंद करने के लिए हमारी पीटीआई की कोई भी रिपोर्ट देने के खिलाफ उन्होंने उनको पैसे भी दिए, पुलिस पंजाब को भी उन्होंने पैसे दिए। वो तो पैसे की सियासत करते हैं ना, और जिसके पास पैसा नहीं है वो सियासत नहीं कर सकता। दीन ईमान की सियासत नहीं है, ये शैतानी कुव्वत की सियासत है। पहले भी मीडिया सेल चलाती रही जी, तो क्या वज़ीर आला पंजाब बन के भी मीडिया सेल ही चला रही? जी जी, वो इसी शोबे को पसंद करती हैं जी, वो टिकटॉकर है, वो इसी चीज को पसंद करती हैं क्योंकि उनका मरकज में शुरू से उनका ये शोबा रहा है, और इसके अलावा उनको आता भी कुछ नहीं है। या वो कपड़ा पहन लेती हैं और टिकटॉक बनाती हैं, या वो अपनी सखियों को लेके आहो नहीं आहो कहने वाली जो है उनको लेके वीडियो भी तो वायरल करती है ना। जी जी, वो उनका शोभा है ना, मैंने कहा सोशल मीडिया का शोभा उन्हीं को सूट भी करता है, और फुल फ्लैज वो उसी के ऊपर फोकस किए हुए हैं। खान साहब, ये अब मियां नवाज शरीफ, ये पाकिस्तान की नाकामी का सबसे अहम रोल मरियम नवाज साहिबा का है। इस मामले में वो अभी तक पाकिस्तान में बैठे थे और उन्हें वापस अपने घर लंदन जाना था। अब ये कल किस्सा तमाम हो गया, तो क्या रिपोर्ट है, क्या इतलात हैं कि वो कब तक लंदन पहुंच रहे हैं, और उन्होंने ये जो लंदन का अब जो दौरा है या वहां पे मुकीम रहेंगे, क्या हालात वाक़यात है? 2 मरतबा लंदन आने का हुआ था और इंतजार था कि किस वक्त वो इस काबिल हों कि लंदन आ सके। अब वो हर्डल थी, ये जो रुकावट थी वो ये 26वीं तरमीम थी, वो कल बहुस्न खूबी अंजाम पा गई है। तो अब मियां साहब की लंदन जाने में कोई रुकावट नहीं है, तो आप जल्दी सुन लेंगे कि वो इलाज के लिए और चेकअप के लिए लंदन तशरीफ ले गए। 361। अच्छा, ये खुसूसी तौर पर कल मियां नवाज शरीफ साहब ने वो शेर पढ़ा अपने जजेस के बारे में, और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा ये इसका तरकीब और काफिया दुरुस्त नहीं है। अब कौम ने इसको बड़ा इंजॉय किया कि पहले होता था ना मुझे क्यों निकाला, बाद में आइए मुझे क्यों बुलाया, तो अब उन्होंने फिर वही अपना रोना रोया है कि ये 17 जजेस जो है ना यही सारा मामला ख़राब करते हैं। तो मुझे आप ये बताएं क्या कि अब जो जजों का रोल इन्होंने अब बना लिया ऐसा, क्या इससे मुल्क को इस्तेकाम आएगा या नवाज शरीफ कुछ सुकून की नींद सो सकेंगे और वो सुकून से लंदन आ सकेंगे?
जी मेरे हिसाब में तो अब रावी चैन ही चैन लिखता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी मर्जी का है, और जब तक कोई अगला आदमी नामजद ना हुआ या कोई तनाज़ा क्रिएट हो गया, वो अपनी सीट पर विराजमान रहेंगे। शुक्रिया 26वीं तरमीम का। फिर यह है कि जजिस की तकर्रुरी पार्लिमानी पार्टी या वजीर आजम की मर्जी से होगी, तो रावी सतह खैरान लिखता है। उसके बाद फिर यह है कि आईनी बेंच बनेगा, उसमें भी उनकी रजामंदी किसी हद तक शामिल होगी, उससे कोई बात नहीं हो सकती उनके लिए। तो बज़ाहिर तो सिचुएशन ये है कि जो कुछ वो चाह रहे थे या जो कुछ मुक़्तदरा चाह रही थी वो हासिल कर लिया गया है किसी हद तक। अब अगले जो प्रोग्राम है वो क्या इनके प्रोग्राम के मुताबिक आगे बढ़ेंगे या अल्लाह की तरफ से कोई रुकावट आ जाए, मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं मुकीम साहब, आप मुझे ये बताया ना, क्योंकि आप तो लंदन में मौजूद हैं, आप उनके नेबर हैं, गवांढी हैं, तो क्या कोई ऐसी मूव है कि वो आ रहे हैं वहाँ, कोई सफाइयाँ या वहाँ कोई अपने वो जो सिक्योरिटी के उनके इंतजामात हैं उनको बेहतर किया गया है? ये इतना कोई मसला नहीं होता उनके इंतजामात का, और जब उन्होंने आना होगा वो तो 12 या 24 घंटे के नोटिस पे भी आ जाएंगे, तो सारी तैयारियां, सारा इंतजाम वहां पे मौजूद है, उनका जो कुछ सेटअप है वो मौजूद है। तो ये कोई मसला नहीं है कि उसके लिए उन्हें कोई ना किसी की इजाजत की जरूरत है, ना उनको कोई लंबे चौड़े तरद्दुद की जरूरत है। वो तो जिस वक्त साहब ये मुझे ये बताएं, क्या इन तरमीम से ये जो मरकज और खैबर पख्तूनख्वा में आपस में लड़ाई थी, इससे कभी खात्मा होने का कोई इम्कान है? जी अभी रौनक फिर लगने वाली है। मखसूस नशिस्तों का फैसला इधर हुआ है ना उधर हुआ है, और इसीलिए उसको भी डिले किया गया। इलेक्शन कमीशन भी ताक में बैठा हुआ था कि जनाब हम क्या करें। तो ये अभी रौनक मजीद लगेगी। बेशक ये नए चीफ जस्टिस को ले आए या अपनी मर्जी का ले आए या नीचे से उठा के ले आए, लेकिन एक दफा फिर ये है कि वो आईनी अदालत के सामने मसला कहीं ना कहीं से घूम फिर के जाएगा जरूर। नहीं वो तो यही है, फरीदी उनके है ना, वो पसंदीदा, उन्हीं को बनाएंगे, बाकी तो दो उड़ा दी उन्होंने। ये तो सारी सूरत हाल कल नजर आई है। अब मैं ये कह रहा था कि जैसे अली मीन गंडापुर और मरकज आपस में इस्लामाबाद की चढ़ाई पे आपस में लड़ते हैं, और मोहसिन नकवी साहब उनसे जाके पेशावर में मुलाकात भी करते हैं, और गवर्नर जो खैबर पख्तूनख्वा है जो रोज़ाना उनके खिलाफ बयान देते थे वो भी उनकी सदारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो इससे हालात को बेहतर होने के इम्कान आते हैं या और बिगड़ेंगे? जी जिस तरफ आपने इशारा किया ना, ये गुफ्तगू जो है गवर्नेंस के लिए या वर्किंग रिलेशनशिप के लिए जरूरी होती है। ये कोई कबायली दुश्मनी नहीं है कि वो एक दूसरे की शक्ल ना देखें या काम ना हो या वजीर आला की समरी जो है गवर्नर मंजूर ना करे, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो KPK हो। फिर KPK का वजीर आला जो है वो EC में ना बैठे या वजीर आजम से मुलाकात ना करे। हमारे यहाँ तो लोगों ने इसको कोई ताना बना दिया है कि यार वर्किंग रिलेशनशिप के लिए कोई लेटर लिख दे, कोई किसी चीज की मंजूरी के लिए कह दे, कोई मुलाकात कर ले, तो हम ये कहते हैं पता नहीं ये बिक गया जी, ये गद्दार हो गया जी, ये खान को छोड़ गया जी, हैं ये पार्टी लाइन से हट गया जी। अजीबो गरीब किस्म का एक माहौल क्रिएट कर दिया हमने कि वो सियासत ना हो गई, कोई जहर आलूद फिजा हो गई कि जिसमें कोई शौक का सांस किसी को नहीं आता और अच्छी सोच भी कहीं से डेवलप नहीं होती। अच्छा वकार साहब मुझे आप ये बताएं, वकार साहब आप मुझे ये बताएं, जैसे मुकीम साहब ने और मोहतरमा ज़ेबा नाज ने इसी आईनी तरमीम के बारे में बात की और उसमें पंजाब का जिक्र आया, तो मुझे आप ये बताएं ये जो पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में आपस में ठनी हुई है कि मरीम नवाज गंडापुर के खिलाफ बयान देती हैं, गंडापुर जो है वो मरीम नवाज के खिलाफ, लेकिन ये जो काम होने वाले हैं ना तरक्याती काम और दूसरे मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जाती, सिर्फ जवाब गज़ल किया जाता है। इस बारे में कोई आप अब हमारी कौम को देखने वालों को ये बताएं कि इसका हल क्या है? लेकिन जैसे मुकीम साहब ने कहा कि अफरीयत इस इंतहा को पहुंच गई है कि ऐसे लगता है कि मतलब दो मुखालिफ स्टेट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। तो हुकूमती डेवलपमेंट या हुकूमती जो कारकर्दगी है उस पर तो जोर नहीं दिया जाता, बल्कि एक दूसरे को सप्रेस करने पे एक दूसरे में इनकी इतनी थन गई है कि मतलब
اب وہ ایک دوسرے کو کچل دینا چاہتے ہیں. مطلب یہ روایت معذرت کے ساتھ PTI نے ڈالی تھی کہ مطلب جب وہ خان صاحب لاہور زمان پارک میں موجود تھے تب گلگت بلتستان کی جو IG تھے وہ یہاں موجود تھے, اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ موجود تھے. ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ SSP آپریشن لاہور کے ساتھ سامنے ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کر دی تھی. تو اداروں کا ٹکراؤ کسی دور میں بھی کوئی اچھی روایت یا اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا. یہ مطلب اس کے نحتاط اور تباہی کا پیش کرنا ہے. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ انہیں چاہیے کہ مطلب افہام و تفہیم سے نہیں وقار صاحب مجھے کچھ نہیں یہ بتائیں کیا کہ آپ ان دونوں صوبوں کے درمیان کچھ اچھی بار روایت ہو جائے گی یا یہ سارے معاملات اسی طرح ٹھنے رہیں گے؟ یہ میرے خیال سے ہو جائے گی. جیسے آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی کے ساتھ جب وہ گنڈا پور نے اچھے بچے بن کے بات چیت کی تھی, اسی طرح سے ان کو اچھا بچہ بنایا جائے گا. کیونکہ مطلب اس طرح زیبا ناز صاحب آپ یہ بتائیں کیا آپ کی جو مسائل ہیں وہ کچھ اور کیا یہ سارے معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ پہلے تو بات یہ ہے احسان صاحب کہ یہ گندی سیاست نون لیگ نے شروع کی, پیپلز پارٹی نے شروع کی. یہ جب ایک دوسرے کے خلاف ہوتے تھے تو زرداری شہباز شریف کا کہتا تھا زرداری کا پیٹ پھاڑوں گا, نواز شریف کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا. اور یہ سیاست جب بلاول بھٹو کی بات آتی تھی یہ زرداری اور بے نظیر کی تصویریں پھینکتے تھے جہازوں سے, یہ لوگ وہ گندی سیاست کرتے رہے اور انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. آج دیکھیں کہ 25 کروڑ عوام کو یہ سڑکوں پہ مانگنے تک انہوں نے مجبور کر دیا ہے. 2.25 سال ہو گیا ان کو سیاست ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے حکمران بنے ہوئے, اور پاکستان کی نہ کسی معیشت کا دھیان ہے. صرف ایک ہی ان کو لگی ہوئی ہے کہ عمران خان کو رستے سے اتارا جائے, رستے سے نکالا جائے. اور ہماری پوری فیملی, ہماری PTI کے پورے سربراہ جیلوں میں ہیں, ہماری خواتین جیلوں میں. مقیم خان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جناب وقار صاحب آپ کا شکر کرتا ہوں, اور محترمہ زیبا ناز صاحب آپ کا مشکور ہوں. اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں عوام نے اور میرے دیکھنے والے ویورز نے کہ میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات اس کا فیصلہ کریں گے آپ.